اب آپ کو بتاتے چلیں 23 مارچ ترقی، امن اور خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی۔ قرارداد کی روشنی میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم پاکستان 23 مارچ 1959 کو اس وقت منایا گیا جب ملک میں آرمی چیف جنرل ایوب خان کی زیر قیادت پہلا مارشل لاء نافذ تھا۔ 1948 سے 1955 تک یہ ایک عام دن کی طرح تھا، لیکن قیام پاکستان کے 7 سال بعد صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم چودھری محمد علی کی قیادت میں 23 مارچ 1956 کو ملک کا اپنا تیار کردہ نیا آئین نافذ ہوا۔ نئے آئین کا نفاذ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اس لیے حکومت نے اسے ہمیشہ کے لیے یادگار دن قرار دیا اور سرکاری سطح پر یہ دن یوم جمہوریہ کے نام سے منانے کا فیصلہ کیا۔ یوم جمہوریہ کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا تھا، جس کے بعد دارالحکومت کراچی کے پولو گراؤنڈ میں فوجی پریڈ ہوئی تھی۔ دوسرے یوم جمہوریہ مارچ 1957 میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان کے لیے شہید اور قومی خدمت انجام دینے والے فوجی افسران اور سپاہیوں کو سرکاری اعزاز دینے کی روایت کا آغاز ہوا۔ مارچ 1958 تک یوم جمہوریہ منانے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ملک میں مارشل لاء نافذ ہونے سے اکتوبر 1958 میں آئین معطل ہو گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل ایوب خان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ آئندہ یہ دن 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جائے گا۔ یوں ملکی تاریخ میں 23 مارچ 1959 کو پہلی مرتبہ اس دن کو یوم پاکستان قرار دیتے ہوئے ہر سال منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج ملک کے 84ویں یوم پاکستان کے موقع پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی پیغامات جاری کیے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے وطن سے محبت کو ایک ایسا فطری جذبہ قرار دیا جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے، جبکہ مراد علی شاہ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ یوم پاکستان کے موقع پر شہر قائد میں بھی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن میں کراچی کی مزار قائد پر آمد۔ پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزار قائد آمد پر قومی ترانہ پڑھا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تینوں شخصیات نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر آئی جی سندھ رفعت مختار، چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر اور دیگر بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ 23 مارچ کا دن کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ پاکستانی فورسز کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بانیان پاکستان کا لہو گواہی دے رہا ہے کہ ہم ترقی کریں گے۔ سازشوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی ترقی کی منزلوں کی طرف گامزن ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر اس لیے میں بہت مثبت دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس مملکت خداداد میں 62% میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگ جو قربانیاں دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قربانیاں ہماری فورسز نے دی ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، وہ رائیگاں نہیں جائیں گی۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 23 مارچ کی قرارداد پاکستان کی آزادی کی بنیاد بنی۔ قائد کے خواب کی خاطر سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، سوچ مثبت رکھنا چاہیے۔ آج ہم اس ملک میں الحمدللہ جو بغیر خوف کے ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ آزاد قوم کی، آزاد ملک کی پہچان اور آزاد ملک کو صرف وہی آزادی سمجھ سکتے ہیں جو آزاد ممالک میں رہ رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ قائد اعظم کے خواب کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ آزادی جیسی نعمت کے بارے میں فلسطینیوں اور کشمیریوں سے پوچھا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اور تحریک پاکستان کے تمام کارکنان کو اور وہ تمام لوگ جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں موجود تھے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کر سکیں۔ آزادی جو نعمت ہے نا، جا کے فلسطینی عوام سے جا کے پوچھئے، کشمیر کی عوام سے جا کے پوچھئے کہ آزاد ریاست میں رہنا
क्या नाम है। तीनों मुसल्ह अफवाज के नुमाइंदों और डीजी रेंजर्स अजहर वक्कास ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। उन्होंने कायद की कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। मुल्क भर में आज 84वां यौम पाकिस्तान जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद, मेयर कराची और सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन जो है वो मुल्क भर की तरह कराची में भी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मज़ार कायद के बाहर मौजूद हूँ और मज़ार कायद पर इस वक्त जो है वो मेहमानों की हाज़िरी का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। अब तक अगर हम मेहमानों की बात करें तो अब तक मेहमानों में सुबह सवेरे जो है हमने देखा कि गवर्नर सिंध और उनके हमरा शर्जील इनाम मेमन सीनियर सूबाई वज़ीर जो है उन्होंने शिरकत की, उन्होंने कौमी तराना भी पढ़ा, साथ ही उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई मज़ार के ऊपर और खुसूसी किताब के अंदर अपने जो तासुरात थे वो कलमबंद किए। उनके बाद जो मेहमानों के आमद का सिलसिला जारी और सारी रहा। तीनों मुसल्ह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की, उनके साथ IG सिंध रफत मुख्तार भी मौजूद थे, उन्होंने भी शिरकत करी, उन्होंने भी फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में जो है अपने तासुरात कलमबंद किए। उसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो कराची के अवाम की जानिब से उन्होंने जो है वो यहाँ पर शिरकत करी और यहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो अपने तासुरात का जो है वो इज़हार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि उनका ये कहना था कि जो 23 मार्च का दिन है ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो दिन है जब 1940 में करारदाद पेश की गई थी कि पाकिस्तान बनने जा रहा है और उसके बाद ही पाकिस्तान बनने की जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ हुआ था। उनके साथ जो है उनके हमरा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मौजूद थे, जबकि अब तक आए जाने वालों में वफाकी वज़ीर जो है वो भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख भी जो है वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पर जो है उन्होंने शिरकत करी है और उनके हमरा उनके साथी मुस्लिम लीग नून के जो दीगर साथी है वो भी मौजूद थे, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन वो मौजूद थे, निहाल हाशमी वो मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करी। यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैसर अहमद शेख ने एक अहम बात करी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसाइल से गुजर रहा है और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए उनके आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने के लिए वफाकी काबीना ने और जितने भी वफाकी काबीना के लोग हैं उन सब ने इस बात का तहिया किया है आज के दिन कि वो अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे और तनख्वाहें जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो छोड़ देंगे और बिलाए किसी मुआवजा जो है वो पाकिस्तान करेंगे। ये बात जो है वो काफ़ी अहम उन्होंने आज कही थी और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये जो जद्दोजहद है पाकिस्तान को बनाने से पाकिस्तान को तरक्की देने तक की ये जो है वो चलती रहेगी और इसमें हम सबको जो है वो मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा। जी बहुत शुक्रिया ताहा अपडेट करने के लिए। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी। नवासी और परनवासी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बिल्कुल, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने भी मज़ार पर हाज़िरी दी। नवासी और परनवासी ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो का 95वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बेगम नुसरत भुट्टो को उनकी सियासी और जमहूरी खिदमात पर खराज अकीदत पेश करते हैं। दुनिया की सियासी तारीख में मादरे जमहूरियत की कुर्बानियों की कोई मिसाल नहीं मिलती है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त सलमान अब्दुल्ला मुराद के साथ मौजूद हैं, तफसील इनसे जानते हैं। बिल्कुल, मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की यौम विलादत जो है आज मनाई जा रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे सर, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो की पूरी ज़िंदगी जो है जद्दोजहद करते गुजरी, दौरे आमरीत में भी जो है वो डटी रहीं और उनकी वजह से जमहूरियत कायम व दायम रही। तो आज के दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मादरे जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा को खराज पेश करता हूँ। उन्होंने जिस अंदाज से इस मुल्क में सियासी जद्दोजहद की, आमराना दौर में बड़ी मुसीबतें सहीं, बड़ी तकलीफ़ें सहीं और उन्होंने अपनी ही आंखों के सामने अपने हस्बैंड का शहादत देखा, 2 बेटियों की शहादत हुई, तो बड़ी
दुख भरी औरत थी और उन्होंने चट्टान की तरह मजबूती से इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। आज जो इस मुल्क में जमहूरियत के समरात हैं तो इनका क्रेडिट का मादर जमहूरियत मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा को जाता है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है और इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए आज उनके यौम पैदाइश के मौके पर मैं उनको खराज पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कठिन दौर में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला, पीपल्स पार्टी के वर्करों को संभाला, आज उसके सम्राट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के को जमहूरियत है, तो उनकी कुर्बानी और उनकी जद्दोजहद का लाजवाल मिसाल है। आज जो है उनका 95वां यौम विलादत जो है मनाया जा रहा है। जी आपको बताएं, पोर्ट कासिम के मरकजी गेट पर बैंक अमले से 50 लाख की वारदात। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 3 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया। बैंक मैनेजर इल्मुद्दीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा। हाँ देखिए, 2 रोज कबल ये बैंक कासिम टाउन थाने की हदूद है पोर्ट कासिम के मरकजी गेट पर ये वारदात हुई थी। इसमें बैंक का जो मैनेजर है वो अपने हेड कैशियर और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर पोर्ट कासिम के अंदर जो ब्रांच है उसकी एटीएम के अंदर 50 लाख रुपए डालने के लिए जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद जो कि कार में सवार थे, उन्होंने इनको रोका और इनसे असले के 50 लाख रुपए छीन लिए, फरार हो गए। पुलिस ने तो आगे का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वाकया कुछ मशकूक लगता है क्योंकि इसमें ना तो जिस जगह वाकया वारदात हुई है वहाँ पर अतराफ में कोई कैमरे लगे हुए हैं और ना ही कोई शख्स ऐनी शाहिद है इस हवाले से। इस पर जो है पुलिस ने ये काम किया है कि इस बैंक मैनेजर और इनके हेड कैशियर और ड्राइवर को तीनों को शामिल तफ्तीश कर लिया है और पुलिस का कहना है कि मज़ीद तहकीकात जारी हैं और जैसे ही आगे सूरत-ए-हाल होगी उसमें वो मीडिया को जो है वो आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुनाफाखोरों ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। रमज़ान मुबारक में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें 40 रुपए तक बढ़ा दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखते हैं। मुनाफाखोर सरगर्म। रमजानुल मुबारक में घी तेल की कीमतें बढ़ा दी। खुला तेल और घी 40 रुपए इजाफे से 420 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ब्रांडेड तेल घी 40 रुपए बढ़कर 520 रुपए किलो पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई से रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। तेल घी क्या हर चीज महंगी हो चुकी है। क्या हर चीज को आग लगी हुई है। क्या तेल वाले भी, क्या हम लोग लेके खाने वाले, बस जितने भी के देंगे हम तो लेके खाने वाले। गरीब मजदूर आदमी क्या मारा जाता है और क्या करे। फिर क्या होगा, जो 5 किलो लेने वाला होगा वो 3 किलो ले लेगा, यही लेगा ना। मगर इस्तेमाल तो फिर भी करना है गरीब आदमी, और कहाँ जाएगा, किसके दर पे जाएगा। जिसकी साबी हैसियत नहीं है वो तो लेगा, 5 किलो लेता था 3 किलो ले लेगा। दुकानदार कहते हैं कि कंपनियों ने मौके से फायदा उठाते हुए कीमतें अज खुद बढ़ाई हैं। कुछ नहीं, रमजान आते ही जो है तकरीबन 40 रुपए 50 रुपए किलो पे तेल घी पे सब कंपनियों ने भी बढ़ा दिए, खुले तेल भी बढ़ा दिए। जाहिर बात है सेल तो कंपनियों की कम होती है, खुला तेल तो लोगों ने जो खाना है वो तो बेचारे जो किलो लेने वाले हैं वो कम लेके खाते हैं। लेकिन ये रमज़ान महीना आया और ये इन्होंने बहुत ही तबाही मचाई है रेटों के सिलसिले में। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई शहरियों को महंगाई से रिलीफ और दुकानदारों के कारोबार में मुस्बत असरात मुरतब करने का सबब बन सकती है। कैमरामैन मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुनाफाखोरों ने शहरियों के लिए सब्जियों का हसूल भी मुश्किल बना दिया। सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जियों की कीमतों से मुतल्लिक अयाज राना की ये रिपोर्ट देखते हैं। सरकारी नरखनामा कागज का टुकड़ा बन के रह गया। कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। कमिश्नर कराची रोजाना की बुनियाद पर रेट लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन सब्जी फरोश इस पर अमल दरामद को तैयार नहीं। तमाम सब्जियां सरकारी कीमत से महंगी बेची जा रही हैं। आलू सरकारी कीमत 52 के बजाय 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 207 रुपए किलो है, जो मार्केट में 230 रुपए किलो मिल रही है। टमाटर सरकारी कीमत 82 के बजाय 100 रुपए, शलजम सरकारी कीमत 32 के बजाय 120 रुपए और लौकी भी सरकारी कीमत 35 रुपए के बजाय 120 रुपए में बेची जा रही है। भिंडी सरकारी कीमत 216 रुपए के बजाय 300, जबकि अदरक लहसुन 350 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गोश्त और मुर्गी तो दूर, सब्जियां भी दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। गरीब तो वैसे ही मर गया है और भी मरेगा। अब आइंदा महंगाई बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्याज 240 रुपए किलो, 300 रुपए किलो प्याज गई खरीदे, फिर इतना कम होता नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21।
जमात इस्लामी की जानिब से शहर भर में बचत बाजारों का जाल बिछा दिया गया। सरकारी कीमतों से भी सस्ती अशिया की दस्तयाबी को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। आगाह कर रहे हैं वसीम इफ्तिखार। रमज़ान मुबारक में हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाज़ार लगाए गए हैं, जहाँ पर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी दावा है कि ये तमाम तर अशिया जिसमें फ्रूट शामिल हैं या इसमें सब्जियाँ शामिल हैं, ये जो गवर्नमेंट की सरकारी रेट है उससे भी जो है वो कम रेट पे इन बचत बाज़ारों में फराम की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद पे जो जमात इस्लामी की जानिब से लगाया हुआ कैंप है इसमें, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सब्जियाँ जो है मुख्तलिफ रेट्स पर फ़रोख्त की जा रही है। बिलखुसूस आलू की बात करेंगे तो आलू यहाँ पर 50 रुपये किलो पे दस्तियाब है, टमाटर 80 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है और लहसुन 130 रुपये पाव में फ़रोख्त किया जा रहा है। मिर्चों की बात करें तो मुख्तलिफ इक़साम की जो मिर्चें हैं वो 80 रुपये से लेके 50 रुपये पाव तक यहाँ पर दस्तियाब हैं। और चूँकि दोपहर का वक्त है तो इस वक्त ख़रीदारी के रुझान में हम इजाफा नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी लोग इन बचत बाज़ारों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर इनको रिलीफ भी मिल रहा है। यहाँ पर आने वाली जो शहरी से जानते हैं, आप ही बताइएगा मैम कि सस्ता बाज़ार है, क्या कहेंगी इस हवाले से, आम बाज़ारों के मुकाबले में रिलीफ कितना है? अच्छी बात है, रमज़ान के महीने में रिलीफ होना चाहिए, हमारा इस्लामी मुल्क है और हम इसी चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते। अच्छा, इस जमात इस्लामी की जानिब से लगाया गया है यहाँ पे रेट लिस्ट जो सरकारी उसके से भी कम रेट है, क्या कहेंगे सवाल? बाहर 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो आलू मिल रहे हैं, यहाँ 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो फ़र्क है रेट्स में। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से इस बचत बाज़ार को खासी सराहा जा रहा है क्योंकि शहरी महंगाई से पहले ही आजिज़ आ चुके हैं और वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं जहाँ पर उनको सस्ती ज़रूरत की अशिया दस्तयाब हों। जी, अवाम को LPG की कीमत में 20 रुपये का रिलीफ मिल गया। 300 रुपये किलो फरोख्त होने वाली LPG 280 रुपये किलो पर आ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राना। खुदा करके रमज़ान में अवाम को रिलीफ मिल ही गया। LPG की कीमत में 20 रुपए की कमी हो गई। रमज़ान उल मुबारक की आमद के साथ ही LPG की कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया था। 260 रुपए में फरोख्त होने वाली LPG 300 रुपए फी किलो पर जा पहुंची थी। ताहम अब 20 रुपए की कमी के बाद LPG 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं जब घरों में गैस मैसर थी तब LPG की कीमत 80 रुपए किलो थी। गैस की किल्लत पैदा होते ही माफिया ने कीमत बढ़ा दी। जिधर जाओ किसी का अपना रेट है, हर किसी का अपना अपना है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा बात करो वो बोला किसी और से भरवा लो, बस ज़्यादा हो जाएगी। ये तो होनी है ना यार, ये गवर्नमेंट बैठी है नहीं, आगे इसने यही करना है, बढ़ानी है चीज़ें, कम तो करनी नहीं है। LPG फरोख्त करने वालों का कहना है कि हम मजबूर हैं, जो कीमत मिलती है उस हिसाब से फरोख्त करते हैं। पहले जब गैस आ रही थी इलाकों के अंदर तो 80 रुपये, सिर्फ 80 रुपये थी। जैसे गैस बंद हुई है जब से कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं गैस के ऊपर, 80 से 300 पे आई, अब आगे 20 रुपये कम कर दी, ये कोई कमी नहीं हुई। शहरियों को खदशा है कि ईद से कबल LPG की कीमत में दोबारा इजाफा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मन्नान के साथ अयाज राना, सिटी 21। काला पुल पर वाक़ पाकिस्तान रेलवे की हिफाजती दीवार पर लगी लोहे की मजबूत जालियां मनशियात के आदी अफराद ले उड़े। मजीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काला पुल पर और मेरे अकब में आप देख सकते हैं पाकिस्तान रेलवे का ये यार्ड है और इस रेलवे यार्ड ग्राउंड के अतराफ में जो दीवारें हैं उन पर मजबूत ग्रिल हुआ करती थी और अब हेरोंचियों ने इसकी जो ग्रिलें हैं वो तोड़कर जो है वो बेच दी हैं। और यही नहीं, शहर के मुख्तलिफ जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं उस पर भी जो उसकी जो हिफाजती दीवार होती है वहाँ पर जो ग्रिलें होती हैं वो हेरोंची लेकर जो है वो फरोख्त कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एक शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, ये जो ग्रिलें हैं ये वो हेरोंची लेके चले जाते हैं तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। पहले तो यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते थे, रेलवे पुलिस वाले, सही है ना, 2 ड्यूटी लगी होती थी, उनके बावजूद भी चोरी यहाँ से ग्रिल ले गई है। समझ गए क्यों? यहाँ आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अपने घर में आके सो जाते थे, उसके बावजूद अब तो कोई रेलवे पुलिस वाले भी नहीं आते। अभी भी आप अंदर कब्रों में जाओ ना, इतना क्या बताऊँ आपको, अंदर सब कुछ हो रहा है। बीच में मालखोरे भी बीच में घुस जाते हैं, माल भी बेचते हैं बीच में, समझ गया ना। और अंदर बैठे हुए दुनिया के, अभी भी आप चक्कर लगाओ अंदर जाके, इतने पोल्ट्री मिलेंगे कि आप पूछे नहीं। ये थे इलाका वकील और जो इस बात पर इज़हार ख्याल कर रहे थे कि अब भी इस रेलवे यार्ड के अंदर जो कमरे मौजूद हैं वहाँ पर हेरोंची जो है वो उनकी आमाजगाह बन चुकी है। हुकामे वाले से ये सवाल कर रहे हैं कि शहरी इंतजामिया, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो इस पर फोकस करें और जो मंशात के आदि अफराद हैं वो ऐसी पब्लिक प्लेसेस की जगह पर जो ना हो और उनके खिलाफ जो है वो
मरबूत हिकमत अमली के साथ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी। और कराची में सूरज के गिर्द हाला बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज के गिर्द बनने वाला हाला मौसम में तब्दीली की अक्कासी करता है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में आसमान पर अफक पर जो है वो सूरज के गिर्द रोशनी का हाला बन गया है। साइंसी इस्लाम में इसको जो है वो सन हैलो भी कहते हैं। माहिरीन मौसमियात का ये बताना है कि शहर में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल हैं, जिसकी वजह से शहर में जो है वो फिजा में आलूदगी जो है वो कम हो गई है, जबकि मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ होने की वजह से फिजा में मौजूद आबी बुखारात ने सूरज की रोशनी को जो है वो मुनकस किया है और यूं रोशनी का ये हालत जो है वो कायम हो गया है। इस मंजर को देखने वालों ने जो है मौसम के मुनफरिद रंग भी मुशाहिदा किए हैं, जबकि इसके अलावा ये जो हाला बना है सूरज के गिर्द, ये जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेशन करता है मौसम में तब्दीली के हवाले से। माहिरीन मौसमियात का ये बताना है कि मौसम में तब्दीली के हवाले से जब मौसम में तब्दीली रोनुमा होनी होती है तो इस तरह का हालत जो है वो बनता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि गुरूब आफ्ताब तक ये हसीन मंजर जो है वो मौसम में दिलचस्पी रखने वालों को हैरत में मुब्तला किए रखेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गार्डन टैंकर चौक से मक्की मस्जिद और सदर जाने वाली इशारा कई हफ्तों से बंद है। तफसीलात जानते हैं जुनैद जावेद से। जी जुनैद। देखिए जी, गार्डन टैंकर चौक से लेकर आगे मक्की मस्जिद जाने वाला जो रोड है जो कि सदर को मिलाता है, उस रोड को इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंतजामिया ने बंद कर रखा है। तकरीबन 1 माह का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर इस तरीके के जो ब्लॉक्स हैं वो लगा दिए गए हैं। शहरियों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से कोई बड़ी गाड़ियाँ भी जो है वो अब नहीं गुजर सकती हैं। बताया गया था कि यहाँ पर जो नाले की तामीर का काम चल रहा है, सिटी नाले की तामीर का जो काम चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो इसकी वजह से तकरीबन 8 से 10 रोज़ बंद रहेगा। लेकिन अब 1 माह का अरसा गुजर चुका है और अब तक जो है इस रोड को खोला नहीं गया है, क्योंकि नाले की तामीर के लिए पहले फेज में जो है वो राइट साइड वाला रोड बंद किया था और उस रोड को भी तकरीबन 4 से 5 माह जो है वो बंद रखा गया था। तो हम इस तरीके से अब जो दूसरा रोड बंद रखा गया है इसको भी ज़्यादा वक्त जो है वो बंद ना रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो यहाँ से सदर के लिए जाता है, एम.ए. जिन्ना रोड के लिए जाता है, I.A. चुंद्रीगढ़ रोड के लिए जाता है और इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर लिंक करता है। अगर एक मरतबा फिर यहाँ दिखाएं तो इस वक्त यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि केबलिंग का काम किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार भी जो है वो मौजूद नहीं है ताकि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। इसी रोड के ऊपर जब आप आगे जाएंगे तो इसी रोड के ऊपर आगे जाकर DIG ट्रैफिक का दफ्तर भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस रोड के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं है। जी। कोरंगी में बोसीदा सीवरेज निज़ाम से शहरियों की परेशानियां मजीद बढ़ने लगी हैं। मजीद बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी हाँ बिल्कुल, बोसीदा सीवरेज निज़ाम ने ज़िला कोरंगी को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मरकज़ी सड़क पर और इसके साथ ये सर्विस रोड है जहाँ पर जो बरसाती नाला है वो ओवरफ्लो हो रहा है। शाम के औकात में, सुबह के औकात में इस सड़क से सैकड़ों की तादाद में बड़ी गाड़ियाँ और जो है छोटी गाड़ियाँ गुजरती हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर हमें बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हैं आप? सर यहाँ से जब हम लोग आते हैं, हमारी लोडिंग गाड़ी होती है, एक्सल भी टूट सकते हैं, बेरिंग भी टूटती है, और दूसरी बात ये इंडस्ट्रियल ये वाला जो है ना लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देता है इनको, मगर यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है, कोई जो है ना कुछ नहीं करते है। तो अच्छा हमें ये भी बता दिएगा, अगर ये पानी सड़कों पर होता है तो हादसात तो नहीं होते इसकी वजह से? हादसात भी बहुत सारे होते हैं, क्यों न कटे का पता चले न कटर का पता चले, तो हादसात भी बहुत सारे हो सकते हैं इससे, तो होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया लाखों करोड़ों रुपए का फंड्स यहाँ से दिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद बुनियादी सहूलियात से ये बुनियादी जो मसाइल हैं उनसे दो चार हैं। सड़कों पर गंदा पानी मौजूद है और जिसकी वजह से जो सड़कें हैं वो तबाही के दहाने पर पहुँच रही हैं, खस्ता हाल होती जा रही हैं। जी। छोटे ताजरों ने बिजली के बिलों के साथ टैक्स वसूली को मुस्तरद कर दिया। इस पर मजीद अपडेट बताएंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, जहाँ हमने देखा कि हालिया IMF की ईमा के ऊपर जो है टैक्स नेट तो बढ़ा नहीं, लेकिन ताजिरों से जो है वो टैक्स कलेक्शन के लिए नई नई बातें जो है वो सामने आ रही। कहा यह जा रहा है कि बिजली के बिलों के अंदर जो है खास कॉलम बना के दुकानदारों से जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा। इस मौके के ऊपर ताजिरों के अंदर क्या तशवीश है वो जानने के लिए हम इस वक्त लियाकताबाद आए हैं और हमारे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान कराची के सदर जावेद शम्स मौजूद हैं। कराची के अगर आप चेक करें तो कराची में 4.5 लाख कमर्शियल सार्फिन है जो बिजली के बिल जो है वो अदा करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से
वैसे ही बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है शहर भर के लोगों को, ताजिरों को बिलखुसूस इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने इस हवाले से बड़ी एफर्ट्स करी थे। तजारती सतह पे रोडों पर जो एहतजाज किया गया पुरअमन और हुकूमत को ये बावर कराया गया ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजिरान सिंध ने जो है वो सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पटिशन फाइल करी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो शख्स टैक्स नेट में ही नहीं आता तो वो उसके ऊपर जो है वो आप इस तरह का टैक्स किस तरह लगा सकते हैं। तो ये अमल जो है बिल्कुल गलत है। इस पे हुकूमत को फिर एक मरतबा जो है मुंह की खानी पड़ेगी। हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर उस दहलीज पे जाएंगे जहाँ से हमारी बात सुनी जा सकती है और एक मरतबा फिर हम सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे की तरफ जाएंगे। वाज़ेह तौर पे क्या कि ताजिर बिरादरी इसको यकसर मुस्तरद करती है, क्योंकि छोटे ताजिर टैक्स नेट में जब वो आते ही नहीं है तो हुकूमत उनसे किस तरीके से जबरन टैक्स वसूल कर सकती है। पहले भी इस तरह के इकदाम लिए जा चुके हैं जिसकी वजह से हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर ऐसे इकदाम हुए तो वो यकीनन एहतजाज और जो अदालतों की तरफ जो है वो रुजू करने के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। जी।